بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ امی ناشتہ لگا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ دوپہر کے 1 بجے نیند سے بیدار ہوئی اور منہ ہاتھ دھو کر قدرے اونچی آواز میں کہتی سیدھا کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا بولو اور آواز کم رکھا کرو ہمنا۔ کتنی بار کہوں تمہاری آواز باہر پڑوس تک جاتی ہے۔ ابھی وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھیں کہ مین گیٹ کھل گیا تھا۔ اکرام صاحب نے سائیکل کو ایک کونے پر کھڑا کر کے کچھ پھل سائیکل کے ہینڈل سے اتار لیے تھے اور سیدھا کچن کی طرف آئے تھے۔ ابو آج پھر یہ کیلے؟ آپ نے تو کہا تھا آپ آم بھی لائیں گے۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں، مہینے میں 2 بار پھل کھانے کو ملتا ہے، وہ بھی کیلے۔ کچھ تو نیا کریں آپ۔ اکرام صاحب کی آنکھوں میں ایک شرمندگی سی اتر آئی تھی۔ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ اس لاک ڈاؤن نے ان کی سابقہ نوکری سے برخاست کر دیا تھا اور جس جگہ وہ اب کام کر رہے تھے وہ منڈی میں سبزیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑنے کا کام تھا۔ آج یہ پھل بھی وہ اوور ٹائم کر کے لائے تھے کہ بچوں کے لیے ان پیسوں سے بس یہ کیلے ہی لا سکے تھے، اس امید کے ساتھ کہ شاید اب کی بار بچے خوش ہو جائیں۔ ہمنا ابو کو پہلے پانی تو پوچھ لو، تم شروع ہو جاتی ہو۔ ابو مجھے دیجیے، آپ بیٹھے، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ ان کی بڑی بیٹی نے ان سے وہ کیلوں والا شاپر لے لیا تھا اور ہمنا منہ بسورے واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں کیا کروں نسرین؟ جو اوور ٹائم لگایا اس میں یہ کچھ پیسے ملے تھے، گیس کا بل بھرایا اور جو بچے اس میں یہ پھل لے آیا۔ آواز میں افسردگی عیاں تھی۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ جمع شدہ بل اپنی بیوی کو تھما دیا تھا اور کندھے پر پڑے اپنے صافے سے اپنا پسینہ صاف کر کے برآمدے میں پڑی اپنی چارپائی پر جا لیٹے تھے۔ تعلیم کی اہمیت اور بہتر مستقبل کے لیے سدے باب کے سلسلے میں ان کے والد ہمیشہ جو باتیں انہیں سمجھاتے رہے تھے آج کچھ زیادہ ہی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ لیکن اکرام صاحب ہمیشہ کھیل کود میں رہتے تھے اور جوانی میں سگریٹ نوشی کی لت میں ایسا الجھے تھے کہ پھر نکل نہیں پائے تھے۔ ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد سارے بھائی الگ ہو گئے تھے۔ وہ سب پڑھے لکھے تھے، آج وہ سب اعلیٰ مقام پر تھے، جبکہ اکرام صاحب کنویں کے مینڈک کی طرح آج بھی اسی مقام پر کھڑے تھے۔ ایک پھیلتی وبا کرونا نے اچھے خاصے بڑے لوگوں کے کام دھندے بند کروا دیے تھے۔ جس جگہ وہ کام کرتے تھے اس فیکٹری میں کام نہ ہونے کی وجہ سے مالک نے سب ملازموں کو فارغ کر دیا تھا۔ ابو اس بار ہم قربانی کریں گے نا؟ اپنے بیٹے کی آواز پر انہوں نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اپنی چادر سے پونچھ لیا تھا۔ ان میں اپنے بڑے بیٹے کو انکار میں جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ حارث تمہیں پتہ نہیں ہے ہم غریب ہیں، ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ ابو آپ نے یہی جواب دینا ہے، آج میں نے دے دیا۔ ہمنا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سامنے والی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہمنا بس کر جاؤ، تمہیں ذرا سی سینس نہیں ہے، 11ویں میں آ گئی ہو اور عقل نہیں آئی تمہیں، بڑی باجی نے غصے سے کہا تھا۔ والد کی آنکھوں میں اداسی اس نے دیکھ لی تھی۔ سونیا باجی آپ تو ایسے ٹپک پڑتی ہیں نا، توبہ ہے، ابو سے بات بھی نہیں کر سکتی میں۔ وہ شیرنی کی طرح بڑی بہن پر گرائی تھی۔ ہمنا میری لاڈلی بچی، ابھی تو بہت وقت ہے، عید میں دعا کرو اللہ کوئی سبب بنا دے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو شفقت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ ابو وہ سبزی منڈی کی فضول نوکری سے آپ قربانی کا جانور خرید پائیں گے؟ حارث کو تو جھوٹے لارے نہ لگائیں، یہ کرونا کم وقت نہ آتا تو میں دکھاتی آپ کو نوکری کر کے۔ میری دوست نے ایک بینک میں بات بھی کر لی تھی پر اس منحوس وائرس کو بھی ابھی آنا تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ پیچھے اس کی والدہ ششتر اپنے شوہر کا جھکا ہوا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اکرام آپ فکر نہ کریں، وہ بچی ہے۔ ابو آپ ہمنا کی کوئی بات دل پر نہ لیا کریں، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور قربانی کریں گے۔ سونیا والد کے پاس آ بیٹھی تھی، اسے اپنے ابو کا جھکا ہوا چہرہ ذرا سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ بیٹا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کیا دیا میں نے تم بچوں کو، پر اس بار کوشش کروں گا کچھ اور محنت کروں تاکہ عید تو اچھی منا سکے میرے بچے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے اس لاک ڈاؤن میں بھی کام ڈھونڈا اور 2 جگہ انہوں نے نوکری کی، گھر میں آتے بھی تھے تو کچھ گھنٹے اور پھر دوسری جگہ کام کرنے چلے جاتے تھے۔ باہر دنیا کی سختیاں انہیں اتنا نہیں ہراتی تھیں
जितना घर में खर्चे पर होती, बच्चों की लड़ाइयाँ उन्हें थका देती थीं। मेहनत के साथ वो अपने लिए आसानियाँ, अपने बच्चों के लिए अपने रब से कुशादा रिस्क मांगते थे। ईद आने में 2 माह रह गए थे और उन्होंने जो कुछ कमाया था उसमें से अपनी बीवी के साथ साथ अपने बच्चों को भी ईद के पैसे दिए थे। उन्हें यकीन था कि वो 2 माह और काम करके इतने पैसे कमा लेंगे कि इस बार कुर्बानी के लिए एक छोटा जानवर भी ले आएंगे। हमना दोस्त के घर जाना इतना क्यों ज़रूरी है? तुम्हें पता है ये वायरस की वबा हर जगह फैली हुई है, हमें एहतियात करनी चाहिए। सोनिया ने कमरे में तैयार होती बहन से कहा था। सोनिया बाजी, आप इतनी भी क़यामत नहीं आई हुई, आप टीवी कम देखा करें। वैसे भी रिमशा तो हमारी हमसाई ही है, 4 घर दूर ही है और हारिस मेरे साथ ही होगा। आप किचन में जाकर खाना बना लें, फिर उन्हीं छोटे मोटे कामों से थक हार कर अब्बू ने आ जाना है। अपना पर्स उठाकर वो बड़ी बहन के पास से गुजरने लगी थी जब उन्होंने हमना का बाजू बहुत गुस्से से पकड़ा था। इन छोटे मोटे कामों की वजह से ही आज हमारा काम चल रहा है। तुम बाज क्यों नहीं आ रही? इतनी बदतमीज़ी, इतनी गुस्ताखी से? तुम तो मेरी तरह मैट्रिक फेल नहीं हो, हमना कॉलेज में पढ़ी हो और ये तुम्हारा लहजा है। हमना ने सोनिया को बेयकीनी से देखा था। पहली बार बड़ी बहन ने उससे इस तरह बात की थी। आपको आज क्या हो गया है? खैरियत है? तौबा, इतना गुस्सा बाजी, बाजू छोड़ें, देर हो रही है मुझे। वो अपना बाजू छुड़वाकर दरवाजे तक चली गई थी। मुझे कुछ नहीं हुआ हमना, पर तुम्हारे रोज़ रोज़ के ताने अब्बू को ज़रूर कुछ कर देंगे। इस कदर बदतमीज़ी और गरीब होने के तुम ताने देना शुरू हो गई हो उन्हें। जो है जितना है इसमें खुश रहो, अल्लाह का शुक्र करो। अगर नाशुक्री करोगी तो अल्लाह ने ये भी छीन लेना है। इस लॉकडाउन में भी अब्बू बाहर की दुनिया की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे लिए उन्हें दुनिया के काम नहीं थका रहे, औलाद की बातें उन्हें अंदर ही अंदर थकाए जा रही हैं। कुछ खुदा का खौफ करो। वो अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ से चली गई थी। अनपढ़ हैं और इतनी ज़ुबान लगी हुई है इन्हें, तौबा। वो कंधे उचकाए कमरे से बाहर आ गई। अब्बू, आपने आज वादा किया था चिकन लाएंगे। सामने चारपाई पर इकराम साहिब जैसे ही उठे थे, उनकी खांसी फिर से शुरू हो गई थी। अब्बू, आप लेटे रहते ना, अभी दवाई खाई है आपने। अब्बू, आप बीमार हैं? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस हल्का सा बुखार है। ओह, वो उठी थी वालिद का चेहरा देखने के लिए, पर बुखार का सुनकर वो 10 कदम पीछे हो गई। अब्बू, कोरोना तो नहीं कहीं? आप ऐसे खुले में लेटे हैं, आपको अंदर कमरे में जाना चाहिए, अलग कमरे में रहें आप। हमना, सोनिया उसे वालिद की चारपाई से कुछ दूर ले गई थी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, थकान हो गई है बस। मैं तो तुम्हारी अम्मी से कह रहा था मेरी खांसी से बच्चे रात को परेशान होंगे, वही हुआ। मैं कमरे में चला जाता हूँ। वो उठकर बहुत हिम्मत करके वहाँ से चले गए थे। तुम्हें शर्म नहीं आती बदतमीज लड़की? आज के बाद अगर मैंने तुम्हें ऐसे बात करते देखा तुम्हारे अब्बू के साथ तो मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। नसरीन बेगम गुस्से से हमना को कहकर इकराम साहिब के पीछे उनके कमरे में चली गई थी। 1 माह रह गया था ईद उल अज़हा को और यहाँ इन पैसों से जो वो मोहल्ले की कुछ खातून के कपड़ों की सिलाई से जमा कर रही थी, नसरीन ने बच्चों को एक एक ईद का जोड़ा लेकर दिया था। इसी दरमियान इकराम साहिब ने एक छोटा जानवर भी खरीद लिया था। इकराम, आप बच्चों की किस किस ख्वाहिश के लिए अपना आप ऐसे मारते रहेंगे? हमना तो बच्ची है, आपने अपनी सेहत देखी है? अब्बू अम्मी ठीक कह रही हैं, आप डॉक्टर को भी चेक नहीं करवा रहे, सर दर्द भी रहने लगा है आपको। दूध के गिलास के साथ सोनिया ने वालिद साहब को उनकी दवाई भी दी थी। नसरीन, तुमने देखा नहीं हमना और हारिस कितना खुश हुए मेरे लिए, मेरे बच्चों की मुस्कुराहट मेरी सेहत के आगे कुछ भी नहीं है। अब्बू, अल्लाह आप दोनों का साया हम पर सलामत ता क़यामत रखे। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें हमारे लिए। सोनिया कहते हुए आप दीता हो गई थी। अरे बस मेरी परियों, बस रोना नहीं, हम ईद भी मनाएंगे और सब खुशियों में परवरदिगार का शुक्राना अदा करना नहीं भूलेंगे। बेटा, सब अल्लाह का करम है, मैं नहीं चलता, अल्लाह मुझे चला रहा है। बस मेरी ख्वाहिश है तुम्हारी और हमना की शादी तय कर दूं। इस वबा के बाद कुछ अच्छे रिश्ते हैं हमारी नज़र में, वो लोग ईद पर रिश्ते के लिए आना चाहते हैं। अम्मी, हमना ने अम्मी के सर पर बम फोड़ा।
वो पिछले कुछ दिनों से एक लड़के के साथ अपनी रिलेशनशिप के तस्करे कर करके अम्मी के कान खाए जा रही थी। नसरीन उसे डांटती कम, अंदर से हौलती ज्यादा रहती। उनके गुमान में भी नहीं था कि वो इस बात को रिश्ते और शादी तक ले जाएगी। बस कर जाओ हमना, तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे। वो लड़का अच्छा नहीं है बेटा, वो नशा करता है, गलत काम करता है। ठीक है, अगर अब्बू नहीं मानेंगे तो मैं भागकर शादी कर लूंगी, फिर अब्बू मान जाएंगे। उसकी बात पर जहां वालिदा का हाथ जवान बेटी पर उठा था, वहीं उस कमरे से बाहर वालिद का हाथ भी उठा था। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। एकदम से दिल में दर्द होने लगा था। दिमाग में एक बात चल रही थी, वो कहाँ गलत हुए अपने बच्चों की तरबियत में। माँ बाप तो सारी ज़िंदगी बच्चों की परवरिश, उनको पालने में ख़त्म कर देते हैं। अगर वही औलाद बड़ी होकर माँ बाप को मरने से पहले मौत दे दे, वो कैसी औलाद हुई। जिस बरामदे में ईद होनी थी, कुर्बानी होनी थी, वहाँ एक जनाजा पड़ा हुआ था। उस घर से एक जनाजा जाते जाते सब कुछ ले गया था। वो जो बेटी कहती थी उसे बाहर उसकी दोस्त नौकरी दिलवा देगी, वही दोस्त अब ये कहने लगी थी कि इस बैंक में अब कोई खाली जगह नहीं। सोनिया एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। उस घर के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। बाप सूखी मेसी रोटी मेहनत करके कमाता था, लेकिन अब वहाँ 2 लोगों की कमाई भी काफ़ी नहीं थी। नसरीन बेगम की सिलाई की कमाई भी वो कमी नहीं पूरी कर पाई थी। अम्मी, मेरा मोबाइल कमरे में नहीं है और उसमें बैलेंस करवा दें। घर में काफ़ी दिन की चुप के बाद जो आवाज़ उभरी वो हमना की ही थी। मोबाइल तोड़ दिया है मैंने तुम्हारा, और जिस रिश्ते का तुमने कहकर अपने बाप की जान ले ली, उसे बुलाओ, मैं 2 बोल पढ़वाकर तुम्हें रुखसत करना चाहती हूँ। मैं माँ हूँ और मेरे पास तुम्हारी ही नहीं, 2 और बच्चों की भी जिम्मेदारी है। अब मैं और नखरे बर्दाश्त नहीं करूँगी तुम्हारे। पर अम्मी, वो अब मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसकी फैमिली को मेरी जगह कमल पसंद आ गई है, उसने मुरझाए हुए लहजे में कहा। तो नसरीन बेगम जाते जाते रुक गई थी। कमल, तुम्हारी वो दोस्त जो तुम्हारे इस रिश्ते में मुलव्विस थी, मुझे अफसोस नहीं हो रहा बेटा। माँ बाप के गुस्ताख अल्लाह की सज़ा से ज़्यादा भाग नहीं सकते। कल ईद है हमना, तुम्हारा वो सूट अलमारी में इस्त्री करके रख दिया है। उस सूट के साथ कुछ ईदी भी है जो तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए मुझे 2 माह पहले ही दे गए थे, और तुम जानती हो वो ईदी सब बच्चों से ज़्यादा थी। तुम्हारे पास इस ईद पर सब कुछ है मेरी बच्ची, कुर्बानी का जानवर, खूबसूरत महंगा लिबास, तुम्हारे लिए पैसे, पर तुम्हारे पास अब वाले जैसी नेमत नहीं रही हमना। दुनिया की खुशियाँ पाने के लिए तुम बाप को जलील और रुस्वा करती थी। बेटा, तुम अब दुनिया की तमाम खुशियाँ पाकर भी अपने अब्बू को वापस नहीं ला सकती। वो रोते हुए बहुत तल्ख हकीकत बयान कर गई थी। उनके जाते ही उसने ज़मीन पर बैठकर अपने घुटनों में सर दिए रोना शुरू कर दिया। ये कैसी खुशियाँ थीं जिन्हें हासिल करते हुए बाप की शफ़क़त ठुकरा दी मैंने। बाप के साए से महरूम कर दिया खुद को, इस घर को। अब्बू, मुझे माफ़ कर दें। आपकी लाडली बेटी ने आप पर दुनिया को तरजीह दी। मेरे लिए अब ना वो खुशियाँ रहीं ना आप। ईद हर बार खुशियाँ लाती थी, पर जिस ईद पर मैंने खुशियाँ छीनना चाहीं, वहाँ बाप को गंवा दिया मैंने। ये कैसी ईद आई है। ज़मीर जागने के बाद ये उसका पहला एहसास, पहली सोच थी जिसका अब कोई फ़ायदा नहीं था।